सारा में हमारे खुदा के लिए शाहरा हमवार करो। Every valley shall be exalted, and the mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and the rough places plain. हर एक नशीब ऊंचा किया जाए और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाए और हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक ना हमवार जगह हमवार की जाए। And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken it. और खुदावंद का जलाल आश्कारा होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। Now, in the book of Samuel, 1 Samuel, 3rd chapter, I want to read the 1st, 2nd, and 19th verse. अब सैमुअल की किताब पहला सैमुअल और उसके तीसरे बाब में से मैं चाहता हूं कि उसकी पहली, दूसरी और फिर 19वीं आयत को पढ़ें। And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. And the word of the Lord was precious in those days. There was no open vision. और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था और कोई रोया बरमला ना होती थी। And it came to pass at the time when Eli was laid down in his place, and his eyes began to wax dim, that he could not see, ere the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was. And Samuel was laid down to sleep, that the Lord called, and he answered, Here am I. और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह पर लेटा था और उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था और सैमुअल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था, तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा और उसने कहा, मैं हाजिर हूं। The 19th verse. And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground. अब 19वीं आयत। और सैमुअल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में मिलने ना दिया। Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month. And we could draw much context from this glorious text. But this morning, and we just have about 20 minutes to get out in proper time from our, I guess the Sunday school is over, or maybe it follows this, I don't know. But however, I want to use the text of the voice of God in this last days. और अब ये बहुत बड़ा वसी मजमून है और अगर हम चाहें तो इस जलाली हिस्से से बहुत से मज़ामीन ले सकते हैं और इस पर हम यहाँ 1 महीना बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आज सुबह हम सिर्फ इस सबक को लेकर मतवातर 20 मिनट इस पर गौर खोज करेंगे। और मेरा अंदाजा है कि संडे स्कूल खत्म हो गया है, मैं नहीं जानता, और हो सकता है ये लोग भी इस पैगाम को सुने, लेकिन तो भी मैं इस मतन को इस नाम से मंसूब करना चाहता हूँ, खुदा की आवाज इन आखिरी दिनों में। It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking from in the Scriptures, that it said there was no open vision in the days of Samuel. Therefore, where there's no vision, the Bible said the people perish. ये बड़ा ही नमाया वक्त है और हम इस बात को महसूस करते हैं कि कलाम मुकद्दस में से जहां से हम गुफ्तगू कर रहे हैं वहां ये कहा गया है कि सैमुअल के दिनों में कोई रोया बरमला ना होती थी। इसलिए बाइबल कहती है जहां रोया नहीं वहां लोग बर्बाद हो जाते हैं। We must have a vision, and visions comes to the prophets, and it's the word of the Lord spoken to them. इसलिए हमारे पास रोया का होना जरूरी है और रोयाएं नबियों को आती हैं
और ये खुदावंद का कलाम है जो उनसे बयान किया जाता है। And we find out that Eli was not a prophet. Eli was a priest. And he was getting old. And his eyes were going dim. And he could not see to get around. He was a great, heavy man. And he had begun to let the work of the Lord go undone. और हम जानते हैं एली एक नबी नहीं था, बल्कि वो एक काहिन था। वो बूढ़ा था और उसकी आंखें धुंधला गई थी और वो इधर उधर जाने के लिए देख नहीं सकता था। वो एक बारी वजूद का शख्स था और वो खुदावंद की खिदमत का काम तो करता था, लेकिन उसे पाया तकमील तक पहुंचाने से पहले ही छोड़ देता था। That's something like it is of today. I think the church, the organization and denominations, they've been on the field for a long time and they're beginning getting laxed. And the work of the Lord is being left undone. और बिल्कुल ऐसी ही बात आज है। मेरा ख्याल है चर्च, अदारे और तंजीमें ये सब इस मैदान में बड़े ही अरसे से चले आ रहे हैं और ये शुरू ही से आवारगी और ढीलेपन में चले आ रहे हैं और इसलिए खुदावंद का काम पाया तकमील तक ना पहुंच सका। The word of truth, because the church in itself has become dim-sighted, and we need today the voice of God to speak among us, bring us back. सच्चाई का कलाम, क्योंकि कलीसिया खुद इसी हालत में है, उसकी आंखें धुंधला गई हैं और आज हमें खुदा की आवाज की जरूरत है जो हमारे दरमियान बोले और हमें वापस कलाम पर लाए। And see, Eli had laid down and his eyesight was failing. He was a priest and they had no open vision from the Lord. And that great need, and God has promised to meet the need of the hour. He always does that. और देखें, एली वहां लेटा हुआ था और उसकी बेनाई खत्म हो रही थी और वो एक काहिन था, जबकि उनके यहाँ खुदावंद की तरफ से कोई रोया बरमला ना होती थी और यही अहम जरूरत थी। खुदा ने इस वक्त की जरूरत के तहत मिलने का वादा कर रखा है। खुदावंद हमेशा यही करता है। And we need the voice of God today to meet the need of the hour. Meet the time that we're living in. And after He has promised it, we can rest assured that He will keep His promise. That's the confidence that the believer has in his Maker, that He promised to meet the need. और आज हमें इस वक्त की जरूरत के तहत और इस वक्त में जिसमें हम रह रहे हैं, खुदा की आवाज से मुलाकात करने की जरूरत है। और जब उसने ये वादा कर रखा है तो हम उस वादे पर यकीन कर सकते हैं, इसलिए कि वो अपना वादा पूरा करता है, इसलिए कि उसने इस जरूरत के तहत मुलाकात का वादा कर रखा है और यही भरोसा है जो कि ईमानदार के अंदर उसके बनाने वाले ने रखा है। And today, one reason that the church is in the condition that it's in is because there is so many voices. So many other voices to attract the church from the voice of God till it's very doubtful that many would hear the voice of God, though it spoke right in their midst. और आज कलीसिया का इस हालत में होने का सिर्फ एक ही सबब है कि यहाँ बहुत सारी आवाजें मौजूद हैं, बहुत सारी दूसरी आवाजें जो खुदा की आवाज से हटाती हैं, जबकि ये बड़ी गैर मोतबर बात है कि बहुत सारे लोग खुदा की आवाज को सुनते हैं जो उनके दरमियान बोली जाती है। They perhaps wouldn't even understand it because it would be a foreign thing to them. They have got themselves so much centered on the voices of the day. लेकिन शायद ये लोग इसे समझ नहीं पाते, तो फिर ये आवाज इन लोगों के लिए अजनबी बन जाती है, क्योंकि इन लोगों ने उन बेशुमार आवाजों को जो इस जमाने की हैं अपने दिल के करीब रखा है।
And if we notice in our scripture reading that the voice of God was foreign to them. And it's become that way again today.